Welcome to Career Defense School. Today I am going to discuss Rashtriya Military School previous sample paper of 2017 for class 6. Okay, in this you have 50 questions of GK which is of 50 marks. Okay, each question is of 1 marks. Our first question is plants that grow in saline water are called. जो प्लांट सलाइन वाटर में ग्रो करते हैं मीन्स जो सी वाटर में ग्रो करते हैं दीज प्लांट्स आर कॉल्ड हेलोफाइट्स, hydrophytes, mesophytes and thallophytes. Its answer will be halophytes because hydrophytes are the plants which grow in simple water, okay, and mesophytes are the plants which grow in sunny areas, okay, on lands, and thallophytes are those plants which grow in deep water or in fresh water, okay. So its answer will be halophytes. Halophytes are the plants which grow in saline water, means sea water, okay. Next question is द सलाल प्रोजेक्ट इज ऑन डैश रिवर. सलाल जो प्रोजेक्ट है वो किस रिवर के ऊपर बना हुआ है, ठीक है. इट्स आंसर विल बी चेनाब. इट्स आंसर इज चेनाब, ओके. Our next question is philology is the, ये किसकी स्टडी होती है फिलोलॉजी. स्टडी ऑफ बॉन्स, स्टडी ऑफ मसल, स्टडी ऑफ आर्किटेक्चर और साइंस ऑफ लैंग्वेज. इट्स आंसर विल बी साइंस ऑफ लैंग्वेज, ओके. It is basically the history of language, the people who studies about the history of language. So its answer will be science of language. Answer is D, okay. Answer is D. When is World Humanitarian Day celebrated? World का Humanitarian Day कब celebrate किया जाता है? Its answer will be 19th August. बेसिकली हमारे जितने भी फेस्टिवल्स हैं या कुछ भी डेज हैं वो सेलिब्रेट बेसिकली अगस्त में होते हैं. तो आप ये याद रखिएगा हमेशा. इफ़ यू डोंट नो अबाउट द ऑप्शंस यू विल टिक अगस्त ओनली, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये छोटा सा एक ट्रिक है जो मैं आपको बता रही हूँ. नेक्स्ट इज हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन बास्केटबॉल प्लेयर टू प्ले इन नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन. कौन सा ऐसा फर्स्ट बास्केट प्लेयर था जिसने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन में प्ले किया था. सो इट्स आंसर विल बी वट विल बी द आंसर. सतनाम सिंह, Balbir Chauhan, Balbir Singh and Ramesh Rathore. What will be the answer? Its answer will be Satnam Singh. Its answer will be Satnam Singh. A option. Okay. Next question 56. The international date line runs through which of the following? Means जैसे हमारी अर्थ है उसके बीच की डेट लाइन, एक तरह की इक्वेटर लाइन, ओके. It will be it is from which a Pacific and Indian Ocean, Indian Arctic and Atlantic, Pacific and Arctic Ocean. The option is Atlantic and Pacific Ocean. What will be the answer? Its answer will be Pacific and Arctic Ocean. Its answer is C. Okay. Its answer is C. Next question number 57. Which among the following temples of India is known as Black Pagoda? Sun Temple, Konark, Brideshwara Temple, Somnath Temple or Meenakshi Temple. Its answer will be Sun Temple in Konark is known as Black Pagoda. Okay. Next question is 58. Which movie won the 89th Oscar Award in 2017 17 for Best Movie category? ये एक बेस्ट मूवी को अवार्ड दिया जाता है ऑस्कर अवार्ड इन एनुअली, ओके. सो किस मूवी को 89th ऑस्कर अवार्ड मिला था 2017 में? सो मूनलाइट, अराइवल, लॉयन एंड ला ला लैंड. What will be the answer? Its answer will be Moonlight. Okay, its answer is A, Moonlight. Let us see next question. Question number 59. Which city is called as the city of Golden Gate? Golden Gate city किसको बोला जाता है जो कि एक वे को अटैच कराती है? Its answer is Rome, Oxford, New York or San Francisco. What will be the answer?
Its answer will be San Francisco. D option, San Francisco. Okay. Question number 60. Who among the following is the exponent of musical instrument मोहन वीणा? इस मोहन वीणा से ही आपको क्लियर हो जाएगा कौन थे इसके एक्सपोनेंट. जुबेन मेहता, अलाउद्दीन खान, इमरान खान एंड पंडित विश्वा. Its answer is Pandit Vishwa Mohan. Okay, its answer is Pandit Vishwa Mohan. Next question. Question number 61. Which Indian cricketer is the highest wicket taker in test matches? Test matches में wicket taker कौन रहा है? Highest किसने ली हैं wickets? R. Ashwin, Kapil Dev, Anil Kumble or Bhisham Singh Bedi? What will be the answer? Its answer is Anil Kumble. Please learn these questions. Anil Kumble. Okay. Question number 62. Which national highway connects New Delhi, Jaipur, Ahmedabad and Mumbai? कौन सा ऐसा हाईवे है जो न्यू दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद और मुंबई को एक वे पे कनेक्ट कराता है? Its answer is NH8, National Highway 8. Okay, C option. Next question, question number 63. In which city चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज सिचुएटेड? कौन सी सिटी में चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद एंड लखनऊ. इट्स आंसर इज लखनऊ. ओके, आंसर विल बी डी. Answer is Lucknow. D option. Next question is, which port of India is a tidal port? Tidal port are the ports in which the water level within the port area subject to change with the ocean ocean tides. मीन्स एक जो वाटर लेवल है वो चेंज हो जाता है विद द ओशियन टाइड्स. तो ये कहाँ है पोर्ट इंडिया में? हार्डिया, हल्दिया, कांडला, कोची एंड पारादीप. Its answer is Kandla. B option. Okay. Next question 65. Which country will host the FIFA World Cup in 2022? Qatar, New Zealand, Canada and England. Its answer is A. Qatar. Okay, its answer is Qatar. A option. Who is the runner-up of Wimbledon Championship 2017 in men's single? Andy Murray, Novak Djokovic, Rafael Nadal or Marin Cilic? Its answer is Marin Cilic. D option. Okay. स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको लर्न करने पड़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 67. व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर्स? इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है जो कि सॉलिड से डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है? अब वेपराइजेशन क्या होता है? वाटर टू वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट होना. सब्लिमेशन मीन्स क्या होता है? सॉलिड टू वेपर्स में कन्वर्ट होना. एंड कंडेंसेशन क्या होता है? वेपर्स टू लिक्विड की फॉर्म में आना. तो इसका आंसर क्या बनेगा? इट्स आंसर विल बी सब्लिमेशन. इट्स आंसर विल बी सब्लिमेशन. बी ऑप्शन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ? अर्थ की क्लोजेस्ट कौन सी लेयर है? फर्स्ट इज ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, थर्मोस्फियर, mesosphere, thermosphere and exosphere. Its answer is troposphere. Troposphere is the first layer. Means photosphere तो कोई layer है ही नहीं. एटमॉस्फेयर इन पूरी लेयर्स को बोला जाता है. तो आंसर स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर में से होना था. तो इट्स आंसर इज ट्रोपोस्फेयर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following mountain range is situated between Narmada and Tapti rivers? कौन से माउंटेन्स हैं नर्मदा एंड तप्ती रिवर के बीच में? कौन से रेंज लाई करती है? विंध्या रेंज, अरावली, सतपुरा एंड नन ऑफ दिस. इट्स आंसर विल बी सतपुरा रेंज. ओके, इट्स आंसर इज सी, सतपुरा रेंज. ऑप्टिकल फाइबर आर यूज इन द फील्ड ऑफ. ऑप्टिकल फाइबर मीन्स जो वायर्स के फॉर्म में, जैसे टेलीफोन्स हैं हमारे,
जो वायर्स के फॉर्म में हम बात करते हैं, जैसे लैंडलाइन फ़ोन्स हो गए, इंटरनेट्स हो गए, जो आपके वाईफाई हैं, वो बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर्स की हेल्प से चलते हैं। तो ये किस फील्ड से करता है? देखिए, स्पोर्ट्स से तो नहीं करेगा, ट्रांसपोर्ट से भी नहीं करेगा, एग्रीकल्चर से भी नहीं। तो इट्स आंसर विल बी टेली कम्युनिकेशन। इट्स आंसर इज सी, टेली कम्युनिकेशन। ओके, जो वायर्स के फॉर्म में हमारा इंटरनेट मीन्स कनेक्ट करता है वर्ल्ड को। Question number 71. BCG vaccine is used for which disease? BCG means Bacillus calamity guerin. ये वैक्सीन किसके लिए यूज़ की जाती है? टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो और नन ऑफ दिस। टाइफाइड की तो कोई वैक्सीन नहीं है, टैबलेट्स यूज़ की जाती हैं इसके लिए। तो ट्यूबरक्लोसिस एंड पोलियो में से होगा। ट्यूबरक्लोसिस के लिए BCG यूज़ की जाती है, बैसिलस कैलामिटी ग्रीन, एंड पोलियो के लिए OPV, OPV, oral polio vaccine. And one more is vaccine the whooping cough. whooping cough के लिए DPT यूज़ की जाती है, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस वैक्सीन। ओके, सो अभी तो हम क्वेश्चन से रिलेटेड करते हैं। इट्स आंसर विल बी बी, ट्यूबरक्लोसिस। BCG इज यूज्ड फॉर ट्यूबरक्लोसिस। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ RBC, रेड ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पैन होता है हमारी बॉडी में, वो कितने डेज के लिए होता है? 120 डेज, 25 डेज, 50 डेज एंड 100 डेज। so its answer will be 120 days. Okay, and there are two types of cells in our body, RBCs and WBC. WBC is white blood cells which fight with a disease or which boost up our immunity system. so WBC का लाइफ स्पैन क्या होता है? 14 to 20 और 25 डेज। ओके, एंड RBC का कितना होता है? 120 डेज, रेड ब्लड सेल्स, जो कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। So its answer is 120 days. Next question 73. Who is appointed as the chairperson of Central Board of Film Certification? फिल्म को सर्टिफिकेशन देने के लिए सेंट्रल बोर्ड ने चेयरपर्सन कौन अपॉइंट किया है? हु इज अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन? प्रसून जोशी, राकेश शर्मा, सुरेश प्रभु एंड प्रकाश जावेदकर। इट्स आंसर विल बी Prasoon Joshi. Prasoon Joshi. Its answer is A. Question number 74. Which country is declared as the polio free by the World Health Organization? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने किसको पोलियो फ्री डिक्लेयर किया है? किस कंट्री को, जहाँ पे पोलियो लोगों को होता ही नहीं है? सोमालिया, कैमरून, एथोपिया एंड गैबोन। इट्स आंसर इज गैबोन। दिस कंट्री इज फ्री फ्रॉम पोलियो। यहाँ लोगों को पोलियो नहीं होता। पोलियो इज अ काइंड ऑफ वायरस। ओके, क्वेश्चन नंबर 75. हु डायरेक्टेड द वीडियो ऑन इंडियन नेशनल एंथम इन साइन लैंग्वेज? साइन लैंग्वेज में नेशनल एंथम को किसने डायरेक्ट किया था? AR रहमान, गोविंद निहालानी, प्रीतम एंड करण जौहर। इट्स आंसर इज गोविंद निहालानी। ओके, इन्होंने हमारे नेशनल एंथम को साइन की लैंग्वेज में भी कन्वर्ट किया, मीन्स एक्सप्रेशन के थ्रू। ठीक है, तो इट्स आंसर इज गोविंद निहालानी। इंटरनेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इंटरनेशनल यूथ किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? इट्स आंसर इज 12 अगस्त। ओके, क्वेश्चन नंबर 77. हु लॉन्च्ड यूट्यूब कंपटीटर कोड वॉच? किसने यूट्यूब कंपटीटर लॉन्च किया था? वॉच मीन्स आप जिसपे साथ में वीडियोस भी देख सकते हैं, कुछ रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो इट्स आंसर विल बी फ्री चार्ज, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। इट्स आंसर इज फेसबुक। फेसबुक ने एक फीचर लॉन्च किया था जिसमें आप यूट्यूब मीन्स आप वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इट्स आंसर विल बी यूट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अनहैप्पी इंडिया? अनहैप्पी इंडिया के ऑथर कौन थे? इट्स आंसर इज लाला लाजपत राय। इट्स आंसर इज लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस कैरेक्टर पिकविक वॉज क्रिएटेड बाय? पिकविक कैरेक्टर किसने क्रिएट किया था? आपने
देखी भी होंगी बहुत सारी बुक्स के ऊपर। पिकविक एक कैरेक्टर है, एक मोटू सा इंसान बना हुआ होता है, ठीक है। तो वो किसने क्रिएट किया था? इट्स आंसर इज स्टीवन सैपलबर्ग, लियो टॉल्स्ले, चार्ल्स डिकन्स और वॉल्ट डिस्ने। इट्स आंसर विल बी चार्ल्स डिकन्स। ऑप्शन इज सी, चार्ल्स डिकन्स। Who co-founded Hotmail and then sold to the company to Microsoft? किसने हॉटमेल क्रिएट करी थी जहां आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं? जैसे आप ये माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन, पीपीटीज और पीडीएफ और माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी आप फीचर्स चलाते हैं, वो हॉटमेल एक पर्सन है माइक्रोसॉफ्ट, उसने को फाउंड की थी एंड देन सोल्ड कर दी थी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को। इसीलिए हर एक फीचर के आगे आता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट। ओके, तो ये किसने किया था? टिम कुक, मार्क जुकरबर्ग, सुंदर पिचाई और साबिर भाटिया। What will be the answer? Its answer is Sabir Bhatia. Answer is D. Sabir Bhatia co-founded Hotmail and then sold to the company to Microsoft, और Microsoft को सोल्ड कर दी थी इन्होंने ये कंपनी Hotmail। Okay. Next is Eritrea country is in which continent? Asia, Africa, Australia and Europe. Its answer will be Africa. अफ्रीका में ये एरिट्रिया किस में है? अफ्रीका में है, ठीक है। नेक्स्ट इज द नोबल पीस प्राइज इज अवार्डेड इन विच सिटी? नोबल पीस प्राइज कहाँ दिया जाता है, कहाँ अवार्ड किया जाता है इसको? ओस्लो, स्टॉकहोम, Geneva and Brussels. What will be the answer? Its answer is Stockholm. It is in Israel. Stockholm is in Israel. Stockholm is in Sweden. Stockholm आपका स्वीडन में है. Sorry, it's a mistake. The Nobel Peace Prize is awarded in which city? Stockholm in Sweden. Okay. Next question is Which sea has the highest salinity? Highest salinity किस sea की है? Answer is Red Sea, Black Sea, Dead Sea and Mediterranean Sea. Its answer is Dead Sea. जो Dead Sea है उसकी salinity इतनी हाई है कि उसके ऊपर हर चीज फ्लोट करती है, कोई भी चीज वहाँ डिप नहीं हो सकती, डूब नहीं सकती, ठीक है। तो उसकी हाई salinity की वजह से वो क्या है, उसके अंदर हर चीज फ्लोट करती है, उसके अंदर इतना नमक है, मीन्स तो वो क्या है, एक डेड सी है जो कि इजराइल में है, ठीक है। इट्स आंसर इज सी। नेक्स्ट इज ब्रेक्सिट इज एसोसिएटेड विद Brexit. Exit of Britain from UN, exit of Great Britain from EU, exit of Great Britain from Commonwealth, and exit of Great Britain from Brexit. What will be the answer? Its answer is B. Exit of Britain from European Union. Okay, its answer is B. Let us see next question. For which movie Akshay Kumar was awarded with 64th National Award in Best Actor category? अक्षय कुमार को 64th नेशनल अवार्ड दिया गया था बेस्ट एक्टर कैटेगरी के लिए। वो किस मूवी के लिए दिया गया था? बेबी, एयरलिफ्ट, रुस्तम एंड जोली LLB। इट्स आंसर इज, ये आपको पता होना चाहिए, रुस्तम सभी ने देखी भी होगी, इंडियन नेवी पे डिपेंडेंट है ये मूवी, तो इट्स आंसर विल बी रुस्तम। नेक्स्ट इज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल स्किन इज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन? स्किन रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसका है? ये तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। फ्रॉग, शार्क, व्हेल एंड कॉकरोच। व्हाट विल बी द आंसर? Its answer is frog. Frog can respire through skin also. वो skin से भी respire कर सकता है, okay? सांस ले सकता है। Next question. What does .mov extension file refers to in the field of computer? .mov किस में रेफर किया जाता है? मीन्स इमेज के लिए तो .jpg यूज किया जाता है, ठीक है। तो व्हाट डज .mov एक्सटेंशन, mov एक्सटेंशन किसके लिए यूज किया जाता है? इमेज फाइल के लिए,
एनिमेशन और मूवी फाइल के लिए, ऑडियो फाइल के लिए, एमएस वर्ड फाइल के लिए? इट्स आंसर इज डॉट एमओवी से ही क्लियर हो रहा है। एमओवी मीन्स मूवी फाइल्स, इनको सेव करने के लिए डॉट एमओवी लिख के हमें सेव करना पड़ता है। ठीक है, तो इट्स आंसर इज एनिमेशन और मूवी फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ बार्ले? किस कंट्री की हाईएस्ट प्रोडक्शन है बार्ले की, मीन्स जौ की, जो आटा? चाइना, इंडिया, रशिया एंड फ्रांस। व्हाट विल बी द आंसर? इट्स आंसर इज रशिया, सी ऑप्शन। आंसर इज सी, रशिया। ओके, let us see next question number 89. स्टेथोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय। स्टेथोस्कोप क्या है? स्टेथोस्कोप डॉक्टर्स यूज करते हैं ना हमारे इंटरनल साउंड सुनने के लिए, तो वो किसने इन्वेंट किया था? बेस्नर, रेने लिनेक, हेनरी बेक्केरेल एंड नन ऑफ दिस। इट्स आंसर इज रेने लिनेक, रेने लिनेक, बी ऑप्शन। ओके, next question is, where is the Great Victoria Desert located? Great Victoria Desert कहाँ है? Canada, Africa, Australia and America. Its answer will be Australia. Its answer is Australia. Okay. Next question, number 91. Where is the headquarter of UNESCO? UNESCO की full form आपको पता होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, जिनीवा, न्यूयॉर्क एंड पेरिस। इट्स आंसर विल बी पेरिस। ओके, इट्स आंसर इज पेरिस, डी ऑप्शन। Next is, who defeated Prithviraj Chauhan in the second battle of Tarain? Akbar, Shah Jahan, Muhammad Ghori and Babur. Its answer is Babur. Its answer is Muhammad Ghori. C option. Okay, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपको लर्न करना पड़ेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93. द लार्जेस्ट ग्लेशियर्स आर। ग्लेशियर्स मीन्स जो लार्जेस्ट आइस के माउंटेन्स होते हैं, बेसिकली ये अपने वेट से ही नीचे दब जाते हैं। तो देखिए, लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है? माउंटेन ग्लेशियर, अल्पाइन ग्लेशियर, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर एंड प्रीडोमिनेंट ग्लेशियर। इट्स आंसर इज कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। ऑप्शन इज सी करेक्ट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। India won its first Olympic hockey gold in वर्ल्ड फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप कब जीता था इंडिया ने? हॉकी वर्ल्ड हॉकी ओलंपिक हॉकी गोल्ड 1928, 1932, 1936 एंड 1948। तो उन्होंने कब जीता था? 1936 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वॉज India's cleanest city as per the survey of स्वच्छ भारत सर्वे 2017? 2017 में स्वच्छ भारत सर्वे में कौन सी सबसे क्लीनेस्ट सिटी थी, सबसे साफ? भोपाल, इंदौर, तिरुचुपैड, चिरापुली एंड मुंबई। इट्स आंसर इज इंदौर। इट्स आंसर इज इंदौर। ओके, बी ऑप्शन। Next, who launched Vidya Virta Abhiyan to encourage universities to display portraits of Paramveer Chakra decorated soldiers? परमवीर चक्र अवार्ड के लिए एनकरेज करने के लिए यूनिवर्सिटीज में एक विद्या वीरता अभियान जारी किया गया था, एनकरेज करने के लिए सोल्जर्स को। तो ये किसने किया था, किसने लॉन्च किया था? प्रकाश जावड़ेकर, हर्षवर्धन, समृति जुबिन ईरानी एंड वेंकैया नायडू। इट्स आंसर इज प्रकाश जावड़ेकर। इट्स आंसर इज ए। ओके, इट्स आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97. ओंकोजीन इज रिस्पॉन्सिबल। ओंकोजीन एक जीन है
बॉडी में स्टार्टिंग से ही रिप्रोड्यूस होता है, वो किसको रिस्पॉन्स करता है, मीन्स क्या होता है ऑन्कोजीन के बढ़ने से, रिप्रोड्यूस होने से? इट्स आंसर इज व्हाट विल बी द आंसर? कैंसर, एड्स, मलेरिया एंड टाइफाइड। इट्स आंसर इज कैंसर। ऑन्कोजीन क्या प्रोड्यूस करता है? कैंसर। हमारी बॉडी में एक जीन होता है, मीन्स ये जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो उससे रिप्रोड्यूस हो जाता है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सायरा लियोन? Bridgetown, Georgetown, Freetown and Cape Town. Its answer will be Freetown. C option. Okay. Next question. Reserve Bank of India was nationalized in the year. किस year में Reserve Bank nationalize हो गया था, national हो गया था? 1935, 1945, 1949 and 1969. Its answer is 1949. After freedom. The national anthem was first sung at which place on 27 December 1911? Bombay, Calcutta, Kanpur and Allahabad. Its answer will be Calcutta. कलकत्ता में फर्स्ट टाइम संग किया गया था नेशनल एंथम हमारा, ठीक है, राष्ट्रगान। ओके, तो ये तो था बेसिकली आपके 100 क्वेश्चंस 2017 के आपके टोटली क्वेश्चंस हो चुके हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।